बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो नंबर सेकंड लेके आए हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोलैरिटीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड चार्ज टू मास रेशियो। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे करने को, सो आइए उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हमारे होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, अब वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज from the quantization of charge, we know Q is equal to NE, where N is a number of charge transferred from or received from one body to another body, and E is the electronic charge or charge on an electron. So here we have to find the number of electronic charges are there in 1 coulomb of charge. So in 1 coulomb of charge, how many electronic charges are there? It means we have to find the value of n. Into में charge on electron we have already know 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. So n is 1 upon 1.6 into 10 is to power minus 19. We can write this equation as n is equal to 10 by 16 into 10 की power minus 19, or we can write it as 100 upon 16 into 10 की power 18, or 6.25 into 10 की power 18. So this much of electronic charges combine to form 1 coulomb of charge. So you can simply conclude that 1 coulomb charge is bigger than electronic charge. It means you can see 6.25 into 10 to the power 18 electronic charge will combine, then they form 1 coulomb of charge. So please note it down. Okay, so what was our second question? If a body gives out 10 is to 9 electron every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? Okay. So what is given? The number of electrons given out from a body in 1 second. कितने? 10 is to power 9 electron. Now, how much time is required to get a charge of 1 coulomb from it? ठीक है. How much time is required? यानी कि we have to find the time required to get a charge of 1 coulomb from it. ठीक है. We can easily understand it by looking at this. Let's say this is the body A. Okay. Now this body gives out
10⁻⁹ electrons in 1 second. Clear? Now, how much time is required when this body gives out 1 coulomb of charge? यही क्वेश्चन है. चलिए, let's find out how much charge is given by a body in 1 second. So again use quantization of charge. Q is equal to NE. Now Q is equal to, what is N? 10⁻⁹. What is E? Charge on electron, which is 1.6 into 10⁻⁻19. So Q is equal to 1.6 into 10⁻⁻10. It means coulomb. It means this amount of charge is transferred from a body A in 1 second. So we can write it as 1.6 into 10⁻⁻10 coulomb charge is taken out from a body in 1 second. What we have to find? We have to find the time required when this body gives out 1 coulomb of charge. So इतने कूलम चार्ज को एक बॉडी दे रही है 1 सेकंड के अंदर. सो 1 कूलम को कितने टाइम में देगी? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10. सो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो. कितना होगा? 100/16 इंटू 10⁻9. कितना होगा? 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स. सो इतने सेकेंड्स के अंदर 1 कूलम चार्ज बॉडी ए में से ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. देखो बच्चों, सबसे पहले हमने निकाला कि 1 सेकंड के अंदर, गिवन क्या था क्वेश्चन के अंदर कि 1 सेकंड के अंदर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से जा रहे हैं. सो मैंने क्या किया? मैंने 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज इस बॉडी में से गया जो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर था. सो मैंने चार्ज निकाला. फर्स्ट ऑफ ऑल Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से. सो यहाँ से चार्ज निकल के आया मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम. अब देखो इतना चार्ज कितने टाइम में गया? 1 सेकंड के अंदर. सो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन आउट फ्रॉम अ बॉडी इन 1 सेकंड. हमें निकालना कितना है? 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने टाइम में जाएगा? 1/दिस टर्म. बच्चों, जैसे हम बचपन में करते थे कि 1 रुपये की 10 टॉफ़ी आती है या 10 टॉफ़ी 10 रुपये की आती है, तो 1 टॉफ़ी कितने की आएगी? तो हम क्या करते थे? 10/10 ऐसे करते थे ना. सेम हमने यहाँ पे भी इस तरीके का यूज़ किया कि इतने कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर गया बॉडी से. तो 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में जाएगा? इतने सेकंड में जाएगा. सो वही हमें फाइंड करना था, तो इतना टाइम हमें लगेगा. अगर हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है कि सर इसको ईयर्स में निकालो, तो कुछ नहीं करना बच्चों. इस टर्म को डिवाइड कर दो आप. देखो 365 डेज होते हैं हमारे पास. ठीक है. 24 आवर्स होते हैं और 3600 सेकंड्स होते हैं एक साल के अंदर. सो ये टर्म हमारी ईयर्स में निकल जाएगी और वो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आएगा 198.18 ईयर्स. सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा. बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कुछ लगता है कि सर नहीं यहाँ पे कुछ करेक्शन होनी चाहिए, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट बिलो. ठीक है. सो आप बिल्कुल कमेंट करना. ठीक है. और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हुए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो जो नंबर. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water. ठीक है. तो पहले एक गंदा सा कप ऑफ वाटर बनाएंगे हम. ठीक है. अब इस कप ऑफ वाटर के अंदर पानी भरा हुआ है भाई. ठीक है. इस कप ऑफ वाटर के अंदर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा होगा? ठीक है. सो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि इतने ग्राम पानी है इसका.
इसके अंदर, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम, ठीक है, सपोज वी हैव 250 ग्राम of water in a cup, ठीक है। इतने ग्राम पानी हमारे पास उस कप के अंदर है, ओके। बच्चों, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, एटीन ग्राम, पता है ना कैसे आया मोलिकुलर मास? हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 होता है, 2 एटम है 2, इससे कितना होता है 16, तो 16 प्लस 2 18, ये आ गया हमारा 18 ग्राम। बच्चों कैसे किया, हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? देखो हमें क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बच्चों याद रखो कि जब आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर्स के बारे में, एटॉमिक नंबर्स क्या बताता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो देयर you have studied that atomic number gives out the total positive or negative charge, and we also know the molecular mass contains how many atoms or molecules, that is equal to Avogadro number. So we can easily say 18 gram of water contains 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स बोल दो मॉलिक्यूल्स बोल दो, ठीक है ना। कि भाई इतने ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इतने हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों? अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। याद करो 1000 साल पहले जब आप 9th क्लास के अंदर थे तब आपने अवोगाड्रो नंबर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सो वहीं से हमने यूज किया, ठीक है। बच्चों हमें क्या करना है, इतने ग्राम पानी के अंदर कितने हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो फाइंड करना पड़ेगा। सो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे भाई? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 250 ग्राम के अंदर कितने होंगे भाई? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 18, यहाँ पे 18 आएगा, इंटू में 250, ठीक है। जो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 8.36 इंटू 10 की पावर 24। दैट मीन्स कि 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमने क्यों फाइंड किया जी? अब देखो बच्चों, हमें ये पता लग गया कि इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। एटम्स नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स हमारे एक कप ऑफ वाटर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं वाटर का, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 1 एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है एक मॉलिक्यूल का? इस वाटर मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर कितना होगा? देखो वही हाइड्रोजन का 1 2 है, H2 हो गया, इसे कितना हो गया 8, यानी कि 10, है ना। दैट मीन्स 1 molecule of water contains 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर तो 10 प्रोटॉन होंगे और या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यानी कि एक मॉलिक्यूल वाटर का 10 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। कितने मॉलिक्यूल है पूरे कप के अंदर? जी इतने मॉलिक्यूल है पूरे कप के अंदर, 8.36 10 की पावर 24। सो 8.36 इंटू 10 की पावर
24 molecules of water contains how many protons or electrons? You can easily we represent it n dash. So n dash की वैल्यू क्या हुई? 10 इंटू में 8.36 इंटू 10 की पावर 24. अब बच्चों ये क्या है आपका n dash क्या आया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर. सो ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. अब ये कितने हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन और टोटल पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन इन अ कप ऑफ वाटर इज Q इज इक्वल टू n डैश इंटू में E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से. अब हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है ना, तो टोटल चार्ज कितना होगा? सो Q इज इक्वल टू n डैश की वैल्यू ये है 8.36 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम. सो अ कप ऑफ वाटर which is having 250 gram of water by weight contains this much amount of charge. नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ. सर कूलम्स लॉ कब आएगा कब आएगा? आ गया कूलम्स लॉ. ठीक है, देखो बच्चों, कूलम्स लॉ measures the electric force between two small charges. Two small charges means point charges. सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज पे बेस वर्क करता है या उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. एक्सटेंडेड पार्टिकल्स पे ये वर्क नहीं करता. ठीक है, अब पॉइंट चार्जेस क्या होती है कि बच्चों कोई भी बॉडी अगर उसका साइज उसके अराउंड जो स्पेस है उसके कंपैरिजन में अगर नेग्लिजिबल है देन वी कंसीडर दैट बॉडी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ, मान लो ये बॉडी ए है. विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड its dimension is negligible, so we can say this is a point object. ठीक है, so पहली बात इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के. ठीक है, we already know that positive and positive charge there is repulsive force. Positive negative or negative positive there is attractive force. ठीक है, और उसी फोर्स को कैलकुलेट करता है हमारा कूलम्स लॉ कि कितनी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है, कितनी हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है. देखो, लेट अस से this is plus Q1 charge, this is plus Q2 charge, and this is distance r from the center of these two charge object, point charge, these two charge object. हमेशा जो डिस्टेंस है, आई रिपीट, हमेशा जो डिस्टेंस है वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेंगे. ठीक है, आने वाले कुछ लेक्चर्स में आप समझ जाओगे इस लाइन का मतलब. सिर्फ अभी तक याद रखो कि दोनों के दोनों जो भी डिस्टेंस है वो हम इसके दोनों के सेंटर से हम लेंगे. ठीक है, लेट्स से अब जो आप डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन
जो आप अपनी बुक्स में देखते हो वो क्या है, आइए देखते हैं। कूलम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन it states that the force of attraction or repulsion between the 2 point charges Q1 and Q2 is directly proportional to the magnitude of charge and inversely proportional to square of the distance from the center between them. Let's say this is the equation number 1 and this is equation number 2. We combine equation number 1 and 2. We got Q1 Q2 divided by R square. When we remove this proportionality sign, we always introduce some constant. Let us say F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where K is proportionality, constant. ठीक है, सो ये हमारा है कूलम्स लॉ। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, ये डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। बच्चों इसकी यूनिट भी होती है। यूनिट कैसे फाइंड करेंगे के की? देखो, यूनिट ऑफ के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका कुछ रह गया है वीडियो को बैक कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। अब देखो के की यूनिट कैसे निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले से अगर मैं के का फॉर्मूला ड्राइव करूं तो के इज इक्वल टू एफ इंटू में आर स्क्वेयर अपॉन Q1 Q2। बच्चों एफ की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस मीटर में होता है तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, तो नीचे क्या होगा? कूलम का स्क्वायर। सो जो हमारी के की यूनिट आएगी वो क्या आएगी? न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम का। ठीक है, सो के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम का -2। गॉट इट? सो प्लीज नोट डाउन। The exact value of (4 pi epsilon naught) is 10⁷ upon c square, where c is velocity of light. And permittivity of free space E naught is equal to 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर। सो ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, और वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है,
अब बच्चों जो हमारा एक कूलम्स लॉ है, मेन फॉर्मूला हमारे पास कैसे ड्राइव होगा। अब देखो इस के की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के अंदर डालते हैं तो हमारी जो मेन फॉर्मूला होगा कूलम्स लॉ का, जो फोर्स होगी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ये हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा कूलम्स लॉ का। अब बच्चों ध्यान से देखो, दिस फोर्स, कूलम्स फोर्स follows inverse square law। कूलम फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? इट मींस दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो उसका स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो एफ 1/r²। सो दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। If I draw the graph between force and this distance r, the graph will be here. You may find some short type answer questions like if the distance between the 2 point object, let's say that this is Q1 and this is Q2, ठीक है, this is the distance r. If this distance r is doubled, then force will become, बच्चों अगर r डबल हो गया तो फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी, अगर r कम हो गया तो फोर्स कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगी। बच्चों ये देखो यहां से ध्यान से देखना, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी ना, जितने अमाउंट से ये क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी उतने अमाउंट से ये क्वांटिटी जो हमारी फोर्स है वो डिक्रीज या फिर इंक्रीज करेगी। अब मैंने आपका क्वेश्चन क्या बोला था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 point ऑब्जेक्ट्स गेट डबल्ड, अगर वो डिस्टेंस डबल हो जाता है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट डज दिस इफेक्ट ऑन फोर्स। अब देखो बच्चों, लेट्स से पहली फोर्स F इज इक्वल टू K/r² थी, K डैश ले लो, चलो K डैश अपॉन r² थी, जो भी हमारा चार्जेस Q1 Q2 हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को डबल कर दिया। ठीक है, पहले इतना था, फिर मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, चार्जेस को मैंने वही सेम रखा Q2। ठीक है ना, ये r था, ये मेरा 2r हो गया। अब जो इस केस के अंदर जो नई फोर्स बनेगी, मैंने बोल दिया F डैश बनेगी जी, वो क्या आएगा हमारे पास, देखो बच्चों K Q1 Q2, ये तो इस केस के अंदर भी वही वैल्यू रहनी है, इस केस के अंदर वही वैल्यू रहनी है। दैट मीन्स K डैश की वैल्यू तो सेम रहेगी, K डैश पहले R था तो r², अब 2r तो 2r का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, नई फोर्स F डैश इज इक्वल टू K डैश अपॉन 4r²। अब ध्यान से देखो, ये K डैश अपॉन r² क्या है, अरे यार ये तो पुरानी वाली फोर्स है अपनी, है ना। सो F डैश इज इक्वल टू पुराने वाली फोर्स डिवाइड बाय 4। जो हमारी नए वाली फोर्स जो बनेगी वो पुरानी फोर्स का 1/4 हो जाएगी, यानी कि जो हमने डिस्टेंस को बढ़ाया तो फोर्स क्या हुई हमारी, कम हो गई। इस वजह से अगर जैसे आप इसको डिस्टेंस को हाफ करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, जो नए वाली फोर्स हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ आप खुद करोगे। नेक्स्ट जो सीबीएसई का हॉट टॉपिक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, डरना नहीं है उससे, थोड़ा वेक्टर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
देखो बच्चों, लेट्स से दिस इज Q1, वही पॉजिटिव चार्ज जो हमने लिया था, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। लेट्स से दिस इज R1 डिस्टेंस, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में लिया R1 वेक्टर, ठीक है। दिस इज Q2 चार्ज, वही प्लस Q2 जो हम अभी तक लेते आए हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज R2। अब बच्चों देखो, कूलम लॉ क्या कहता है कि जो लाइक चार्जेस होंगे दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस टू चार्जेस। अब बच्चों ये देखो, अब जो इस तरफ फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। वेक्टर्स में हम इस तरह लिखते हैं ना, ठीक है। इसको कैसे लिखा, जब हम 11th क्लास की वीडियो बनाएंगे, आप वेक्टर्स कराएंगे, वहाँ पे देख लेना। अदरवाइज आप कोई भी रेफरेंस बुक है तो वहाँ पे देखना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह भी एक फोर्स लगेगी, उसको हम बोल सकते हैं कि F फोर्स ऑन वन, क्योंकि वन है, ड्यू टू सेकेंड, तो ये F12 होगी, ठीक है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बच्चे देखो कैसे करेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही बोलता है। लेकिन अब इस इक्वेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो हम कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले लेट्स से F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। सारा कुछ तो सेम आएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जो भी हमारा होगा आर स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या देना है? वेक्टर्स क्या होती हैं? देखो बच्चों, वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी डायरेक्शन भी होती है। यानी कि ये फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। सो हम डायरेक्शन देते हैं, इस तरफ का जो इस फोर्स की डायरेक्शन देगा वो हमारा क्या होगा? R21 यूनिट वेक्टर, और इधर क्या होगा? R12 यूनिट वेक्टर, इस फोर्स की डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा? F21, तो यहाँ पे क्या होगा? R21 का यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर भी आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। और कैसे लिखते हैं हम? जैसे हमारे पास ये आर कैप है तो क्या होगा? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मेक्स दैट यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हमें फाइंड करना है इसको, इस आर को भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर भी तो एक वेक्टर है, इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। अब देखो, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डेल्टा आर। हम जीरो से ए, इसको पॉइंट लेते हैं ए, इसको देते हैं बी। जीरो से ए पे गए तो डायरेक्शन ये होगी, है ना। तो R1 वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब फोर्स हमने F21 लिया, यानी कि यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो ये हमारी इसकी डायरेक्शन होगी डेल्टा आर की। जीरो से बी ये हमारी होगी R2 की। अब ये क्या बना? एक ट्राइंगल बना। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको याद है कि जो सेम ओरिएंटेशन में होगा वो किसके इक्वल होगा? जो उसके अपोजिट में होगा। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अब क्या होगा? डेल्टा आर को हम कैसे लिखूंगा? R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। और डेल्टा आर ध्यान से देखो क्या है? डिस्टेंस है दोनों के सेंटर में, यानी कि ये क्या है? डेल्टा आर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको के Q1 Q2 अपॉन डेल्टा आर का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ठीक है। अब देखो बच्चों, डेल्टा आर क्या है? R2 माइनस R1 वेक्टर। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना। F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना, का होल का स्क्वायर इनटू में R2 1
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ठीक है, अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू में R2 माइनस R1 वेक्टर। अब देखो बच्चों, ये पोजिशनल वेक्टर है, इस पोजिशनल वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, देखो अब जो R21 है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस 2 से 1 के बीच में, तो वो क्या होगा, देखो बच्चों ये हमारा यहाँ तक अगर R1 है, ये R2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R2 माइनस R1। तो मैंने R2 और 1 को क्या लिख दिया, R2 माइनस R1। ठीक है, ये भी R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड है, ये भी R2 माइनस R1 है, तो दिस इंटू दिस का क्यूब हो जाएगा और ये R2 माइनस R1। तो ये हमारी बनेगी वेक्टर फॉर्म। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नाउ जैसे हमने F21 किया, हम F12 भी कर सकते हैं। F12 करोगे तो क्या होगा, ये साइन रिप्लेस हो जाएंगे, बस F12 करके देखना अपने आप, इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सो ये हमारी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, प्लीज नोट डाउन। ओके बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, रेंज ऑफ कूलम फोर्सेस। बच्चों कूलम फोर्स की जो रेंज है वो न्यूक्लियर रेंज से, न्यूक्लियर रेंज आपको पता है 10 की पावर -15 टू मैक्रोस्कोपिक लेवल तक होती है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहां पे रेंज ऑफ कूलम फोर्सेस 10 की पावर -15 से 10 की पावर 18 मीटर। ठीक है, ये कूलम फोर्स की रेंज होती है। अब बच्चों मैं लिमिटेशन बताता हूं आपको, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। देखो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये क्या है कि ये पॉइंट चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, पॉइंट चार्ज पे आप कैसे लिखोगे, इट वर्क्स ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इट डज नॉट वर्क्स ऑन एक्सटेंडेड चार्ज पार्टिकल्स। एक्सटेंडेड चार्ज पार्टिकल्स मीन्स बड़े बड़े चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, सेकंड है चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। दोनों चार्ज रेस्ट पे होनी चाहिए तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, Q1 भी रेस्ट पे हो, Q2 भी रेस्ट पे हो, तभी ये हम कूलम्स लॉ एप्लीकेबल करेंगे इसके ऊपर। अगर दोनों चार्ज मूवेबल हो तो कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। हाँ, जब एक चार्ज रेस्ट पे है और दूसरा चार्ज मोशन के अंदर है तब भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। सो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट करना। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो ये वीडियोस हैं आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।